Hello everyone, welcome to the online classes. Today we shall study the fourth chapter of Vistas. The name of the chapter is The Enemy, written by Pearl S. Buck. The Enemy is set at the time of Second World War. It is a heart-rending portrayal of the conflict between man's head and heart. बच्चों, ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय सेट की गई है और ये एक हृदय विदारक पोर्ट्रेयल है। एक डॉक्टर के दिल और दिमाग के बीच में जो संघर्ष चलता है उसका चित्रण करती है। An American sailor is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a very eminent Japanese surgeon and scientist, Dr. Sadao Hoki. एक अमेरिकन नाविक जो है वो घायल अवस्था में बहते बहते एक बहुत ही जाने माने सर्जन सडाओ होकी के दरवाजे पर आ जाता है। डॉक्टर सडाओ होकी इज torn between his duty as a doctor and as a Japanese. तो उनकी समझ में नहीं आता कि मुझे एज अ डॉक्टर अपनी ड्यूटी करनी है या एज अ जापानीज अपने कर्तव्य का पालन करना है। His heart is telling him to save the prisoner while his mind is fighting to turn him over to the police. It is a difficult choice to decide whether one should allow oneself to be governed by emotion or by reason. There are four main characters. Dr. Sadao Hoki, he is an accomplished surgeon who resolved successfully the conflict between his patriotic duty and his duty to save the life of people. जो डॉक्टर साहब हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इसको सुलझाते हैं जो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है कि उन्होंने अपने इमोशंस की बात सुननी है या अपने दिमाग की बात सुननी है। हैना सडाओ's wife who always cooperate him. हैना उनकी वाइफ है जो हमेशा अपने पति का साथ देती है। टॉम, he is a typical American soldier thinking that most Japanese are cruel and inhuman. जो टॉम है, जो सेलर है, जो बहते हुए वहां पर आया है, जिसको ये दिमाग में ये एक भ्रम है अभी तक कि जो जापानीज लोग होते हैं वो क्रूल होते हैं। The general, he is a selfish old man only wanting Sadao to make him recover from his illness. Let's overview the chapter. Dr. Sadao Hoki, a famous Japanese surgeon and an accomplished scientist, lived in a house on the Japanese coast. Sadao's education was his father's main concern. He even sent Sadao to America for higher studies in medical science. Sadao's father inculcated in him the values of patriotism and national loyalty from childhood. Dr. Sadao had always cherished these great virtues. बच्चों, तो ये जो डॉक्टर सडाओ हैं, ये बचपन से ही इनके पिताजी ने इनकी शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान दिया और यहाँ तक कि उनको चिकित्सा विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। बचपन से ही उनके अंदर पैट्रियटिज्म, राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना भरी गई और डॉक्टर सडाओ ने भी हमेशा इन मूल्यों का आदर सम्मान किया। The Second World War started, but Dr. Sadao was not sent with the troops because he was about to make a discovery which would render wounds entirely clean. अब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन डॉक्टर सदाओ को सेना के साथ नहीं भेजा गया क्योंकि वो घावों पर एक अनुसंधान कर रही थी और इसके साथ ही साथ also the general who was old being treated by Dr. Sadao and he might require an operation anytime. जो वहां का जनरल था वो भी किस पर विश्वास करता था? डॉक्टर सडाओ पर विश्वास करता था और वो भी काफी बूढ़ा था और बीमार था, तो उसको भी किसी भी समय ऑपरेशन की जरूरत हो सकती थी। तो इसीलिए अपने स्वार्थवश भी उसने डॉक्टर सडाओ को सेना के साथ, ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा। डॉक्टर सडाओ had met Hannah in America, but he had waited until he was sure that she was Japanese before deciding to marry her.
डॉक्टर सडाओ को हैना अमेरिका में मिली, लेकिन उन्होंने तब तक शादी का निर्णय नहीं लिया जब तक कि उनको इस बात का पूरा भरोसा नहीं हो गया कि ये जापानीज है। तो ये क्या चीज शो करती है बच्चों, कि उनको अपने जापानीज मूल्यों पर बहुत अधिक गर्व था। After Sadao and Hannah had finished their studies, they came home to Japan. The marriage was solemnized in the traditional Japanese way, according to his father's wishes. They were a happy couple. उसके बाद जब वो लोग अमेरिका से जापान आ गए तो उन्होंने अपने बिल्कुल ट्रेडिशनल पारंपरिक जापानी तरीके से अपने पिताजी की इच्छानुसार जापान में शादी करी। वो दोनों बहुत एक अच्छे हैप्पी मैरिड कपल थे। One late evening, Dr. Sadao and Hannah were standing in their veranda. Suddenly, they saw a man crawling on his hand and knees. एक बार डॉक्टर साहब और हैना जो है बरामदे में खड़े थे, तो तभी उनको लगता है कि एक आदमी कुछ घायल अवस्था में अपने हाथों से ऐसे कुछ रेंगता हुआ सा आ रहा है। He was washed away at the doctor's door. They came down the step. Dr. Sadao found that he was wounded. He was a prisoner of war. He was shot in the back. तो डॉक्टर साहब जब उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो कोई अमेरिका का सिपाही है, नाविक है। ये क्या है? प्रिजनर ऑफ वॉर है और इसको गोली लगी हुई है। He was an enemy. They dragged him to their door. The blood was flowing. The doctor packed the wound with the sea moss. Sadao said to himself, the best thing that we could do would be to put him back in the sea. तो डॉक्टर साहब उसको फर्स्ट एड देते हैं, सी मॉस लगाते हैं उसके घाव में, और वो खुद अपने आप से कहते हैं चूंकि ये एक शत्रु का सैनिक है तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि इसको दोबारा कहाँ फेंक दिया जाए, दोबारा फिर से समुद्र में फेंक दिया जाए। बट दे वर नॉट एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, लेकिन वो उसको उस घायल अवस्था में दोबारा समुद्र में फेंक नहीं पाते। डॉक्टर सडाओ सेड, वो कहते हैं, इफ ही वर होल ही कुड बी हैंड ओवर टू पुलिस। वो कहते कि अगर ये साबुत होता यानी पूरा होता, घायल अवस्था में नहीं होता, तो मैं इसको बड़े आसानी से पुलिस को सौंप देता। बट ही वॉज वुंडेड, ही वुड डाई, लेकिन ये तो घायल है, ये तो मर जाएगा। डॉक्टर सडाओ ऑपरेटेड अपॉन हिज बैक, वो उसको घर ले आते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं। टुक आउट द बुलेट, उसके उस घाव से बुलेट को बाहर निकालते हैं। गेव हिम शेल्टर इन हिज हाउस टिल द वुंड वॉज हील्ड, अपने घर में उसको शरण देते हैं जब तक कि उसका घाव ठीक नहीं हो जाता। द सर्वेंट्स वर अगेंस्ट दिस एक्शन, दे लेफ्ट द हाउस इन प्रोटेस्ट। जो घर के नौकर चाकर होते हैं उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और विरोध स्वरूप वो घर छोड़ देते हैं। बट हैना served the wounded white man is in spite of all oddness, लेकिन उनकी पत्नी हैना जो है वो पूरी उनकी मदद करती है और उस गोरे इंसान की सेवा करती है। On the 7th day, a messenger in official uniform came to Sadao's house. तो 7वें दिन एक संदेशवाहक आता है अपनी यूनिफॉर्म पहन के। He asked Dr. Sadao that he was wanted by the general to the palace. तो उनसे कहता है कि आपको जनरल साहब ने बुलाया है। The general was suffering from a long time. He needed Dr. Sadao very often. Dr. Sadao disclosed that an American wounded soldier was in his house. तो डॉक्टर सडाओ वहां जाते हैं और जनरल को बताते हैं कि मेरे यहाँ एक कौन है, गोरा यानी अमेरिकन सोल्जर जो है वो मेरे यहाँ है। डॉक्टर सडाओ टोल्ड द होल एपिसोड टू द जनरल, और सारी घटना जो है वो जनरल को बता देते हैं। द जनरल न्यू दैट Sadao was indispensable to him. He never trusted other Japanese surgeon. अब जनरल ये समझता है, ये जानता है कि डॉक्टर सडाओ जो है वो मेरे लिए कितने जरूरी है, क्योंकि वो और किसी जापानीज सर्जन पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि डॉक्टर सडाओ जो है अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया क्या है, शल्य चिकित्सक हैं। The general promised Sadao that nothing would happen to him. जनरल डॉक्टर सडाओ से वादा करते हैं कि तुम पर कोई आंच नहीं आएगी।
द जनरल देन प्लांट, उसके बाद जनरल एक योजना बनाता है। क्या योजना है? टू गेट द अमेरिकन सेलर असैसिनेटेड, कि इसको मार देते हैं, इसका वध कर देते हैं। ठीक है। ही टोल्ड सडाओ दैट हिज प्राइवेट असैसिन्स वर वेरी कॉम्पिटेंट एंड वुड ऑल्सो रिमूव द डेड बॉडी। वो डॉक्टर सडाओ से कहते हैं कि मेरे जो अपने हत्यारे हैं जो वध करते हैं, प्राइवेट जो असैसिनेशन इसका कर देंगे, और यहाँ तक कि वो इसकी डेड बॉडी को भी वहां से हटा देंगे। सडाओ थॉट दैट दिस प्लान वुड बी द बेस्ट फॉर हिज फैमिली, तो वो सोचते हैं कि चलो इससे छुटकारा पाने का यही सबसे अच्छा तरीका है, ऐसा डॉक्टर सडाओ सोचते हैं। After that meeting, Sadao spent 3 restless nights waiting for the assassins. तो 3 रातें वो बिल्कुल बेचैनी में काटते हैं। कौन? डॉक्टर सडाओ, कि वो कौन आएगा? जनरल के वध करने वाले आएंगे हत्यारे और इसका वध करेंगे। तो वो बहुत रेस्टलेस है, बहुत बेचैन है। बट दे डिडंट कम, लेकिन कोई भी नहीं आता। During this period, the white man regained his strength and came in movements. तो इस दौरान ये इतने दिन और व्यतीत हो जाते हैं और वो जो गोरा है, जो वो सैनिक है, दुश्मन का जो सैनिक है, वो उसको काफी वो उसकी ताकत ठीक हो जाती है, थोड़ा स्वास्थ्य लाभ करता है और वो थोड़ा बहुत मूवमेंट भी करने लगता है। Finally, the mental torture became too much to bear for him. अब डॉक्टर सडाओ के लिए इस मानसिक यंत्रणा को झेलना बहुत कठिन हो गया है और वो अब और उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। He planned to get rid of the enemy himself. तो वो सोचते हैं कि अब इस दुश्मन से, दुश्मन कौन? जिसका कि उन्होंने ऑपरेशन किया, जिसको उन्होंने अपने घर में शरण दी, तो इससे मुझे मुक्ति पाने के लिए खुद ही कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। Dr. Sadao told the escape plan to Tom, the American soldier. अब डॉक्टर साहब टॉम कौन? वो अमेरिकन जो सोल्जर है, उसको भागने की योजना बताते हैं। डॉक्टर सडाओ अरेंज अ बोट, फूड, फ्रेश वाटर, क्लोथिंग, अ टॉर्च एटसेट्रा to enable the American to survive on the sea and wait till he found a Korean ship to board. तो वो उसके लिए खाने का, फ्रेश वाटर का, कपड़ों का, ये सब टॉर्च इत्यादि का इंतजाम करते हैं, और जिससे कि वो वहां पर समुद्र में जो टापू बने हैं वहां पर वो रह सके जब तक कि उसको कोई कोरियन बोट न मिल जाए जिसमें कि वो चला जाए। Sadao also briefed him about safety measures to be taken and to signal with the torch if he required help. उसको सेफ्टी मेजर्स भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम वहां से टॉर्च से सिग्नल दोगे। He even dressed him up to look like a Japanese, covering his blonde hair with a cloth. यहाँ तक कि खुद उसको तैयार करते हैं और उसके ब्लॉन्ड हेयर्स को वो कपड़ों में बांध देते हैं ताकि वो गोरा प्रतीत न हो, वो एक जापानीज जैसा दिखे। Even Hannah didn't know about his plan. यहाँ तक कि उनकी पत्नी हैना को भी उनकी इस योजना के बारे में पता नहीं है। कौन सी योजना? कि डॉक्टर सडाओ उसको वहां से भगाने की योजना बना रहे हैं। The soldier realized that the doctor was giving him second life. वो सोल्जर ये बात समझ जाता है, उसको महसूस होता है कि आज डॉक्टर सडाओ मुझे दूसरी बार बचा रहे हैं। पहली बार कब? जब उन्होंने उसका ऑपरेशन किया, उसको अपने घर में शेल्टर दिया, और दूसरे टाइम पे डॉक्टर सडाओ उसको कब बचा रहे हैं? जब उसको वहां से चुपचाप निकलवा रहे हैं, भगा रहे हैं। He escaped safe and secure. वो बहुत ही सेफ और सुरक्षित तरीके से वहां से चला जाता है। The servant returned to work and the household began to run smoothly. अब उनके नौकर चाकर भी लौट के आ जाते हैं और उनका घर पूर्ववत चलने लगता है। Dr. Sadao went to the general and informed him that the American had escaped. अब डॉक्टर साहब जनरल के पास जाते हैं, डॉक्टर सडाओ, और उससे कहते हैं कि वो अमेरिकन सोल्जर तो भाग गया। Then the general said that he forgot his promise in his great suffering. तो जनरल कहता है डॉक्टर सडाओ से कि मेरी इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि मैंने तुमसे जो वादा किया था, क्या वादा किया था? कि मैं इस अमेरिकन सोल्जर को मारने के लिए हत्यारे भेजूंगा, मैं भूल गया। He told Sadao not to leak the information to anybody, कि किसी को अब ये बात मत बताना। Back at home, Dr. Sadao remembered his days in America and the Americans he met there. He wondered
why he couldn't kill Tom, his enemy. अब डॉक्टर सडाओ घर आते हैं, वो बैठे हैं और अमेरिका में बिताए हुए उनके दिन, वो कुछ सुनहरी यादें वो याद करते हैं और उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि ये तो मेरा शत्रु था, मैं इसको क्यों नहीं मार पाया. The humanitarian values we find in Sadao's act are the universal values of sympathy, humanitarian consideration, love for fellow human beings, and compassion. When Dr. Sadao came across the prisoner of war, the first thing he did was to save his life. As a doctor, he fulfilled the moral obligation of saving a human life. डॉक्टर सदाओ जब उस घायल अवस्था में उस शत्रु सैनिक को देखते हैं तो उनका मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है? सबसे पहले नैतिक कर्तव्य क्या है? एक डॉक्टर होने के नाते एक इंसान की जिंदगी को बचाना, जिसको कि वो पूरा करते हैं. नेक्स्ट, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ लॉयल टू हिज कंट्री. दूसरी बार वो एक राष्ट्र प्रेमी के रूप में अपने को साबित करते हैं. वो कैसे? बाय इन्फॉर्मिंग द जनरल अबाउट द एनिमी. By letting him escape, Dr. Sadao proves that even if two countries are at war, the religion of humanity does not alter. यहाँ पर डॉक्टर सडाओ ये संदेश देते हैं कि यद्यपि दो देश आपस में क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं, वॉर पे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा इंसानियत का धर्म है वो बदलता नहीं है. इट्स बेसिक टेनेट इज सेविंग अ ह्यूमन लाइफ, विच डॉक्टर सडाओ डज विद एप्लॉम. एक डॉक्टर की जो कर्तव्य है वो एक इंसानी जिंदगी को बचाना है, जो कि डॉक्टर सडाओ बखूबी करते हैं. In a way, Dr. Sadao echoes the author Pearl S. Burke's view against war and the hatred that it generates between men and men. इसके साथ ही साथ डॉक्टर सडाओ के द्वारा ये जो ऑथर है पेरल एस बेक का जो एक उनका दृष्टिकोण है, क्या है दृष्टिकोण? कि जो वॉर है वो इंसानियत के खिलाफ है. इसका संदेश भी हमें मिलता है. Through Dr. Sadao, the author conveys the message of universal brotherhood, peace, and amity. It is indeed the best solution to the problem. This brings us to the end of the chapter. Thank you. Keep learning, keep practicing.